So chapter number 1 in that first chapter is regarding the principal stress and strain. Chapter number 1 is principal stress and strain. Okay, so now first, before starting any chapter, we need to understand the names that are mentioned in the chapter. So what is the meaning of this principal strain and what is the meaning of this principal strain? So let's start with that. So introduction to principal stress and strain. So I would request you to note down this for this definitions also. So what is the meaning of principal plane first, right? What is the meaning of principal plane? So the meaning of principal plane, let me explain that. So the planes which have no shear stress are known as principal planes. Simple definition, but many times people forget because we tend to forget simple stuff, right? Or we tend to ignore simple stuff. So principal plane, what is the meaning of a plane? The plane which have no shear stress are known as principal planes. Hence, principal planes are the planes of zero shear stress. These planes carry only normal stresses. The normal stresses acting on a principal plane are known as principal stresses. Now, please note down this so that I can explain this in detail because it is very difficult to understand the stuff which is written. So we need to understand the stuff in detail. So please note down this first paragraph of this PPT. Then I will explain in a simple manner. So once you note down this, just let me know so that I can move forward. The plane which have no shear stress are known as principal planes. Hence, principal planes are the planes of zero shear stress. These planes carry only normal stresses. The normal stresses acting on the principal plane are known as principal stress. Please note down this one paragraph and then I will explain the terminologies behind it using some figures. So just let me know if you have done it. Done, sir. Done. Okay. So just let us understand what is the meaning of this stuff that I'm explaining. I'm trying to explain over here, right? So suppose if you take any just a minute, if you take any rectangular portion from a material, right? This is a simple portion of a rectangular material, and if a stress is acting like this is one stress, this is second stress, so there will be equal and opposite in the other direction also, like this, right? So let us denote this one as sigma 1, denote this one as sigma 2. These are the stresses, right? These are the stresses acting on my plane, right? These are the stresses acting on my plane. So if this type of arrangement you can find, let us give the numbering also. So this one on the left hand side, starting from this is A, then at bottom I have point B, then this is C, and this is D, right? So A, B, C, D is the naming of a part. So sigma 1 and sigma 2 are the stresses acting. So this is again, this will be also sigma 1, this will be also sigma 2, right? So what the definition says, the planes on which normal stress is acting alone, no shear stress. So this sigma 1 and sigma 2 are called normal stresses only, right? Which is acting normal to the plane. These are acting normal to the plane. So if this type of force system is there, then those planes are called principal planes. So let us find out what are the principal planes in this. So in this figure, plane AB, this is plane AB, this plane AB, plane BC, plane CD, and plane AD. These all four planes are called principal planes as there is no shear stress in the plane, right? As there is no shear stress in the plane. Now, how do you show the shear stresses? So just for example, I am showing if you have this type of arrangement, this type of arrangement over here, then there is this type of force. And if this type of arrangement will be there, then this will not be the principal plane, right? So principal plane means
you have only normal stresses, sigma 1 and sigma 2. No shear stress. This shear stress is denoted by tau. This shear stress is denoted by tau. The notation for that is tau. So if this tau is not present, only sigma 1 and sigma 2 is present, then it is called principal plane. Right? So this is about the principal plane. So if you want, you can draw this figure, and then I will explain about the principal stresses. Okay, so I hope you have drawn this figure. Now let us understand what is the meaning of principal stresses. Right, let us understand principal stresses. So the principal stresses are normal stresses acting on mutually perpendicular principal planes on which shear stresses are zero. So what is the principal stress? The principal stresses are normal stresses. First, these are normal stresses acting on mutually perpendicular principal planes, acting on perpendicular principal planes on which shear stresses are zero, on which shear stress is zero, on which shear stress is zero. So this is the general identification of my principal stress. So principal stress are normal stresses acting on mutually perpendicular planes on which shear stresses are zero. The maximum value of normal stress acting on principal plane are called major principal stresses. So next definition, please note down major principal stresses. Major principal stresses. I'm noting it in a short form. I hope you understand this. So major principal stress. So these are the definitions which may be asked for exam in the exam. So this can be asked in interviews also, right? So major principal stress. So what is the major principal stress? Please note down the maximum value of normal stress, the maximum value of normal stress acting on principal plane, acting on principal plane. PP means principal plane, right? So what is the major principal stress? It is the maximum value of normal stress acting on principal plane, which is called major principal stress. And second definition is about minor principal stress. So let me just draw a line and okay, next one is minor principal stress. So can anyone tell me what can be the minor principal stress? क्या होगा? जिसमें सर मिनिमम वैल्यू लगेगी स्ट्रेस की। Exactly. So this will be minimum normal stress. This will be minimum normal stress acting on the principal plane. Acting on principal plane. Right. So we have done three definitions. First is the principal stress. Then we have done major principal stress and minor principal stress. In this group, we have started with the principal plane definition, then principal stress, major principal stress and minor principal stress. Why this is important? Because when we go on to the advanced level, that we do the examples for this, at that time you need to be able to identify that what is called principal plane, what is called principal stress, how to identify major principal stress, how to identify minor principal stress. So
That is why these definitions are very important, right? Now, regarding this principal stress and principal strain, if I talk about the general stuff, generally, what is happening generally the principal stress is represented by major principal stress, right? Generally, major principal stress is represented by sigma 1. So this is major principal stress generally, right? Mostly. Then minor principal stress is represented by sigma 2. So this is sigma 2 is minor principal stress, but this is not necessarily always. You need to look for the maximum normal stress value, which is my major principal stress. This is major and this is minor, right? So this is about major principal stress and minor principal stresses. Okay, so shall I remove this? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. All right, all right. So back to the PPT. So then the planes which have no shear stress are known as principal plane. Hence, principal planes are the planes of zero shear stress. This all things we understood, right? The planes carry only normal stresses. The normal stresses acting on a principal plane are known as principal stresses. So this we already understood. So no need to write this again. Let's go back to the explanation part. All right. So now, what are the methods for finding this stress transformation? So next topic is regarding the methods. Okay, just a minute. So note down which are the methods of stress transformation, right? Methods of stress transformation. So what are the methods we are going to use in this chapter to find out this stresses and strains? So first method is analytical method. Method number one is analytical method, and second method is graphical method. Second method is graphical method. So in the graphical method, the name of the actual method, graphical method, is Moore's circle. M-O-H-R, Moore's circle. Have you heard about this method, Moore's circle? Yes, sir. Great, In great. an So AM. yes, go ahead. So we'll be using these two methods, and then first one is analytical method and second is a graphical method, right? So this, I think you must have uh, studied this in brief in your diplomas. Am I correct? Yes, sir. Great, great. So this is kind of a revision for you, but a very long time, after a very long time, right? Because you are a Yes. working professional, so Yes. you must be aware of this because this is not used in actual practice frequently. All right. So before starting with the analytical method, we'll be starting with the analytical method. We decide some sign conventions. Sign conventions. So what are the sign conventions that I am going to follow is for stress. First for stress is, so if the value is positive, we take it as tension. And if the value is negative, we consider it as a compression. This is for stress. Then second for shear, tau, I'll take sign convention. So for shear, I need to draw this type of figure. I need to draw an element. So if it is acting like this, if your shear is acting like this, then I will consider this type of action as positive. And if the shear is acting in a different manner, which is like this,
this I will consider as negative, right? And then there will be angle of rotation also, angle of rotation theta. So if I consider my vertical plane, and if I measure the angle in this direction like this, if this is my theta angle, right? So reference plane is vertical, reference plane is what? This is my reference plane. This is my reference plane. So in theta, I will have two sign convention. If I go anti-clockwise, I will take it as positive, and second is if I go like this clockwise, then that direction, this sign convention, right? These are the sign conventions. You can have your own sign conventions also, but whatever sign convention that I am going to follow, I have dictated over. So these are the sign conventions for stress. That is the sigma, tau, and theta. These are the three sign conventions that we are going to follow before starting with the analytical method. So in the analytical method, we have different cases, right? We'll solve each case individually, and we'll solve one small example after each case. Done? Yes or no? Yes, sir. Okay. So we start with the first method, which is analytical method. Method number 1, first method, analytical method. We are starting with the first method, analytical method. In that, there are different cases. So we start with the case number 1. Case number 1. Now what happens in this case number 1? In the case number 1, the member is subjected to axial stresses. The member is subjected to axial stresses in one plane only. Axial stress in one plane only. This is case number 1. So let us understand this with a figure, what is happening. So suppose this is, हार्दिक सर, yes, क्या आप कुछ वर्ड्स हिंदी में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना डिप्लोमा गुजराती में कंप्लीट किया, तो थोड़े वर्ड समझने में तकलीफ हो रही है. पता चल रहा है लेकिन कुछ वर्ड समझने में तकलीफ हो रही है सर. सो ठीक है, आई विल ट्राई टू मिक्स इट अप. ओके सर. सर ओके, राइट. सो केस नंबर 1 है कि जिसमें हमारा मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस इन वन प्लेन ओनली. सो इट इज सब्जेक्टेड टू only one directional stresses. So I'm trying to explain with a figure. Suppose this is your plane, right? Just pardon me with my drawing because I am using some different pen. मैं कुछ अलग पेन यूज कर रहा हूँ, so अभी उस पे मेरा grip नहीं है how to draw, right? So I नहीं hope सर, लेकिन पता चल रहा है, कोई बात नहीं सर. ओके. okay, right. So only one plane means any one plane. So suppose in vertical plane ऐसे एक स्ट्रेस लग रहा है और दूसरे डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेस लग रहा है, एक ही प्लेन में लग रहा है, वर्टिकल प्लेन में ही लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेस नहीं लग रहा है, राइट. सो लेट मी डिनोट दिस स्ट्रेस एज सिग्मा एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है. हॉरिजॉन्टल मतलब हम लेंगे एक्स डायरेक्शन, हाँ, एज अ ग्राफिक, राइट. सो सिग्मा एक्स, यस. और अगर मैं इसको कोई एक सेक्शन लेता हूं, इफ आई टेक अ सेक्शन लाइक दिस, राइट, एंड take out an element from this plane. So I have taken out an element from there. So एक एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, राइट. देयर विल बी एंगल हियर थीटा. तो यहाँ पे एक थीटा एंगल बना, राइट. और ये जो मेरा स्ट्रेस ब्लॉक बाहर निकला, उसमें एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, दैट इज मैं उसको बोलूंगा सिग्मा एन,
राइट, और सिग्मा एन दोनों साइड पे होगा बिकॉज इट हैज टू बैलेंस, राइट। तो सिग्मा एन दोनों साइड पे लगेगा। देन ये जो मैंने सेक्शन कट किया वो सेक्शन का मैं नाम दूंगा सेक्शन ए डैश, सेक्शन ए डैश मेरे सेक्शन का नाम है, राइट। और यहाँ पे एक एंगल पे है, मतलब यहाँ पे कुछ शियर भी आएगा, राइट। तो शियर फोर्स में दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो इट विल, शियर विल बी टाउ, मेरे शियर की वैल्यू रहेगी, नोटेशन रहेगा टाउ, राइट। तो ऐसा एक फिगर का अरेंजमेंट बनेगा। केस नंबर 1 में क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, जो हमने दिखाया है सिग्मा एक्स करके, राइट। सो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ए डैश। सो हमें सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है। सो लेट्स राइट डाउन नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ए डैश, ऑन प्लेन ए डैश, उसको हमने डिनोट किया है सिग्मा एन से। सो इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, उसका पूरा डेरिवेशन है, बट वो डेरिवेशन में मैं डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट विच इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें मेरा यूज करना है सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो मुझे देगा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ऑन प्लेन ए डैश। सेकंड वैल्यू मुझे मिलेगी उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन प्लेन ए डैश, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन प्लेन ए डैश, उसको हमने डिनोट किया है टाउ, टाउ उसको बोलते हैं टाउ। उसका वैल्यू, उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय 2, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा, इंटू साइन 2 थीटा। सो ये एक दूसरा एक इक्वेशन हुआ केस नंबर 1 में। और तीसरा जो है वो है रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा एन। सो थर्ड विल बी रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन प्लेन ए डैश, उसको हमने डिनोट किया है सिग्मा एन। सो सिग्मा एन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ सी, सॉरी सिग्मा एन नहीं, रिजल्टेंट सिग्मा आर होगा, राइट। रिजल्टेंट विल बी सिग्मा आर, ये दोनों वैल्यूज का एक रिजल्टेंट एक्शन मिलेगा हमें सिग्मा एन और सिग्मा टी का। सो दिस विल बी सिग्मा आर नॉट एन, दिस विल बी सिग्मा आर। सो सिग्मा आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये तीन वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। अगर केस नंबर 1 एग्जांपल में आता है दैट मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस इन वन प्लेन ओनली, राइट, तो उसमें तीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक तो है नॉर्मल स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फाइंड करने को बोला जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन प्लेन ए डैश, सो उसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। सो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। और तीसरा हमें फाइंड करने को बोल सकते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। सो रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर फाइंड करने को बोलते हैं तो हमें पहले फाइंड करने पड़ेगा सिग्मा एन एन टाउ, और रिजल्टेंट की फॉर्मूला बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। So this is the case number 1 when member is subjected to only one directional stresses. So let us apply this formula and solve a very small example. ये formula यूज करके हम एक छोटा सा example solve करने का try करते हैं जो आपकी एग्जाम में आ सकता है। लेट अस से 3 to 5 मार्क्स, एग्जाम में 3 से 5 मार्क तक पूछा जा सकता है, राइट। सो ये कॉपी हो गया? हाँ सर, लिख दिया। यस सर। ओके, राइट। तो अब हम छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो आई विल मूव टू द एग्जांपल पार्ट। So I'll just rub this up. Okay, right. So let us start with a very simple example. Example number 1. So उसमें क्या दिया गया है? A circular
shaft is subjected to axial pull of is subjected to axial pull of वैल्यू दी है पुल की 100 किलो न्यूटन. Calculate normal, tangential and resultant stresses. Calculate normal, tangential and resultant stresses on a section. Resultant stresses on a section inclined at 30 डिग्री. सो सेक्शन दिया है 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे. inclined at 30 degree to the cross section of the staff. 30 degree to the cross section of shaft. Now ये डेटा को हम फिगर के हिसाब से अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. शाफ्ट दिया है, द शाफ्ट इज लाइक दिस. राइट, और उसको 100 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, दैट इज 100 किलोन्यूटन. एंड ऑन दिस साइड आल्सो इट इज 100 किलोन्यूटन. और उसका यहाँ पे एक सेक्शन कट करके देख सकते हैं. सेक्शन है, सेक्शन में ऐसा दिखेगा. उसका डायमीटर दिया है और डायमीटर है 40 mm, 40. राइट, सो दिस इज द गिवन थिंग. आपको ये चीज दी हुई है और आपको बोला गया है आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना है, नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है, टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करना है. अब आप डेटा पढ़ोगे तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको कौन सा केस यूज करना है, केस नंबर 1 या केस नंबर 2 या केस नंबर 3. राइट, बट आप इसमें से एक चीज देख सकते हो फिगर में से कि जो स्ट्रेस लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है. राइट, एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, कोई भी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए. सो आप फिगर पे से देख सकते हो कि इट इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली. सो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब हमें केस नंबर 1 वाली फॉर्मूला यूज करनी है. राइट, सो विल बी यूजिंग द केस नंबर 1 फॉर्मूला ओनली. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. राइट, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिख देते हैं. फोर्स दिया हुआ है P 100 किलोन्यूटन. 100 किलोन्यूटन को हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना हो, सो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन. सो इतना फोर्स हमें दिया हुआ है. देन हमें एरिया फाइंड करना होगा शाफ्ट का. तो एरिया कैसे मिलेगा, π/4 d स्क्वायर. सो पाई डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर. d क्या होगा, डायमीटर. सो क्विकली कैलकुलेट दिस. कैलसी निकालो और कैलकुलेट करो. डायमीटर है 40. तो कितनी वैल्यू आ रही है एरिया की, एक और चीज कॉमन रहेगी मेरे सारे लेक्चर्स में, जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको ही करना होगा. ओके सर. क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग हो कि नहीं हो. नहीं सर, है, अटेंड कर रहे हैं. नहीं, जैसे नॉर्मल लेक्चर्स में जैसे रेगुलर क्लासेस होते हैं उसमें काफी बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं. आई नो आप लोग ऐसा नहीं करोगे क्योंकि यू आर एंथुसियास्टिक. आपने खुद से पढ़ाई का डिसीजन लिया है जो बहुत ही अच्छा डिसीजन है. आप लोग ऐसा नहीं करोगे, बट इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप खुद से करोगे. हाँ हाँ सर, ओके ओके. पाइप. चलो जल्दी, क्या आंसर आ रहा है. ये आंसर आ रहा है, मैंने लिखा है वो.
Yes or no? सर जस्ट अ सेकंड. Okay. मेरा आंसर आ रहा है 1256.63. हाँ सर आ रहा है ये वाला आंसर. पाई की वैल्यू को हमने 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 40 स्क्वायर से कर दिया. ओके राइट. सो आपका हाँ एरिया आ गया 1256.63. राइट हाँ सर. नाउ आप डेटा में देखोगे आपको जो 100 किलोन्यूटन फोर्स दिया है वो फोर्स है. राइट फोर्स को आपको स्ट्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जो स्ट्रेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सिग्मा एक्स. सो स्ट्रेस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? कोई बताएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. पता है ये? हाँ सर स्ट्रेस इज डिप्लोमा इक्वल में आ चुका है ये. यस. तो हमारे पास Suppose- फोर्स की वैल्यू डेटा में दी है. यस फोर्स की हाँ वैल्यू है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स भी हमें दिया गया है. 3 और एरिया हमने फाइंड किया हाँ 100 डिवाइड 1256.6. बाय 1256.63. सो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही है मेरी 79.57 हाँ 79.5. यस सर. न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. यूनिट यहाँ पे ओके इंपॉर्टेंट है. राइट आपको 100 ओके. किलोमीटर दिया है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है उसके बाद डिवाइड करना है. हाँ हाँ सर. तो एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे 79.57 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. अब डेटा में दूसरी एक चीज है नॉर्मल स्ट्रेस एट अ प्लेन 30 डिग्री. राइट सो नॉर्मल स्ट्रेस हमें कितने डिग्री पे फाइंड करना है? नॉर्मल स्ट्रेस 30 डिग्री एट नॉर्मल. 30 degree angle plane. Right? So sigma n का फॉर्मूला है sigma n is equal to sigma x सिग्मा multiply by एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा. square theta. हाँ तो इसमें आपको sigma x की वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू पता है. हाँ So 79.57 multiply by cos square थीटा है 30. सो क्विकली ये वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर में रखो. अगर साइंटिफिक कैलसी है तो ज्यादा बेहतर रहेगा. नहीं सर आज साइंटिफिक नहीं है लेकिन आई थिंक अभी मोबाइल में ब्रेक में लिखा है. हाँ Scientific, हाँ. ओके. सर ये थोड़ा ऊपर वाला और एक बार समझाएंगे? मेरा नेट इश्यू था इसीलिए. ये सिग्मा एक्स वाला. सिग्मा एक्स वाला. हाँ सर. हाँ देखो डेटा में हमें फोर्स की वैल्यू दी है 100 किलोन्यूटन. राइट बट हमें हाँ चाहिए स्ट्रेस की वैल्यू. सो स्ट्रेस का फॉर्मूला है P डिवाइड बाय A फोर्स अपॉन एरिया. हाँ हाँ हमने फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला लगाया. फोर्स हमें डेटा में दिया है 100 किलोन्यूटन. उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किया 10 डिवाइड बाय एरिया किया. तो उससे हमें स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई 79.57. 1256.63 है सर नीचे वाला. हाँ 1256.63 एरिया. ओके. हाँ एरिया. ओके सर. चलो तो सिग्मा n की वैल्यू फाइंड करो. $79.57 multiplied by cos square theta. 0.57. तो आप लोगों के पास साइंटिफिक कैल्सी नहीं है ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ मैं. और वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं 59.68.
59.68 यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो नॉर्मल स्ट्रेस मिला मुझे, जो डेटा में पूछा गया है एग्जांपल में कि नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है। दूसरा हमें पूछा गया है टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करना है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है टेंजेंशियल हाँ, स्ट्रेस। टाउ वाला। यस, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड टाउ बाय इज 2 इक्वल टू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा। yes, सिग्मा x की वैल्यू है 79.57 डिवाइड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय sin 60 डिग्री। आपके मोबाइल में साइंटिफिक कैलसी है कि नहीं है? है सर, लेकिन बैक में फिर जाना पड़ेगा। हाँ तो निकल सकते हो, ये चालू रहेगा, आपका मीटिंग चालू रहेगा। बैक बटन मत दबाना, वो जैसे डायरेक्ट निकलते हैं ना वैसा बटन दबा दो तो ये मीटिंग चालू रहेगा। ओके ओके सर। सो इसलिए हमें लगा फिर लेक्चर से आउट हो जाएंगे इसलिए। 34.45 सर। बैक बटन नहीं दबाना है, जैसे डायरेक्ट बाहर निकलते हैं ना हाँ हाँ हाँ। वैसे जाओगे तो मीटिंग। ओके सर। 34.45। 34.45 यस 34.45 यूनिट क्या आएगा इसका? न्यूटन पर mm न्यूटन स्क्वायर। पर mm स्क्वायर। और लास्ट हमें क्या पूछा है? रिजल्टेंट स्ट्रेस भी फाइंड करना है। रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा r इज इक्वल टू हार्दिक सर, जो फर्स्ट वाला था उसमें हमने 30 डिग्री रखा था, फिर इसमें क्यों साइन 60 रखना पड़ा? 2 थीटा है यहाँ पे देखो, और ऊपर स्क्वायर है, ऊपर वाले ओके में ओके, स्क्वायर हाँ था हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ, ओके ओके सर। तो सिग्मा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा n स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सिग्मा n है 59.68 68 प्लस 34.45 स्क्वायर। 168 multiplied plus 34.45 square. हाँ, 68.90। Yes, right. So I am getting my answer 68.91. Right. So ऐसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना रहेगा 3 फॉर्मूला यूज करके। राइट, दिस इज फॉर केस नंबर 1। 1। आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखनी है सिर्फ, ओके सर। और सिग्मा यस r सर। वाली। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। 1। अब नेक्स्ट केस नंबर 2 पे जाते हैं। Let's rub this. केस 2। सो केस 2 में क्या होगा? If the principal stresses acting on two mutually perpendicular planes are, if principal stress acting on two planes are sigma 1 and sigma 2, sigma 1 and sigma 2, in which sigma 1 is major principal stress, sigma 1 is major principal stress, and sigma 2 is minor principal stress. Yes. So this is case number 2. In this, there are two stresses acting on two mutually perpendicular planes, sigma 1 and sigma 2. So let us understand by
means of figure कि इसमें कैसा दिखेगा हमें. So let me draw a simple block. So there will be stress on this plane also, there will be stress on this plane also. So horizontal denote as sigma 1, this is sigma 2, right? So अब इसमें कोई भी एक plane लेंगे हम. Suppose this is one plane, the angle is again theta, and we take us some small block out. So on this plane, there will be a resultant sigma n. There will be shear like this. On this plane also we have a resultant force that is called as sigma n dash, right? Because दोनों plane पे stresses लग रहे हैं, so दोनों plane पे हमें resultant find करना होगा. So this will be again sigma n dash. Here there will be shear stress on all four planes. On all four planes, I will be having the shear stress. Shear stress इसकी वैल्यू रहेगी tau. So it will look like this. Your figure will look like this. So यहाँ पे भी दोनों साइड पे सिग्मा 1 रहेगा और नीचे भी सिग्मा 2. एक चीज याद रखनी है कि सिग्मा 1 जो एक साइड पे रहेगा वो दूसरे साइड पे सेम वैल्यू रहेगी. इट इज नॉट दैट दोनों साइड पे अलग अलग वैल्यू रहेगी एक ही प्लेन पे. ओके, दोनों साइड हॉरिजॉन्टल है ना सर? यस. ओके. सो ये केस नंबर 2 है हमारा, जिसमें दोनों प्लेन पे स्ट्रेसेस लग रहे हैं. एक है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और दूसरा है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. अब इसमें हमें सेम चीज करनी है. नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है सिग्मा एन, टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करना है टाउ, फिर रिजल्टेंट फाइंड करना है, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो फर्स्ट द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन ऑन अ प्लेन ए डैश. ना प्लेन का नाम भी सेम ही रहेगा, ये ए पॉइंट और नीचे वाला ए डैश, राइट? सो प्लेन हम लेंगे ए डैश which is inclined at an angle theta with plane of major principal stress. यहाँ पे जो इंक्लिनेशन दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो ये वाले प्लेन से दिया है वर्टिकल, और वर्टिकल वाला क्या हुआ, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला प्लेन है. सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले प्लेन को हम बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन. सिंपल है, जहां पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है वो वाला प्लेन हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन. क्लियर? हाँ सर. ओके सर. तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमारा दिया है मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे. तो अगर ऐसा केस है तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा नॉर्मल स्ट्रेस का सिग्मा एन विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 into cos 2 थीटा. ये वाला फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एन का. सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा. ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस जो प्रिंसिपल प्लेन पे लग रहा है. अब सेकंड नॉर्मल स्ट्रेस एट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए डैश. सेकंड वाला बनेगा नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एन डैश. सिग्मा एन डैश क्या है मेरा? सिग्मा एन डैश इज अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए डैश. आप ये वाली फिगर देखोगे, जो सिग्मा एन डैश है, सिग्मा एन डैश जो है वो मेरे ए डैश प्लेन से परपेंडिकुलर है. Yes or no? यस सर. राइट. तो सिग्मा एन डैश का फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा. यहाँ पे जो प्लस आ रहा है उसकी जगह माइनस हो जाएगा. ओके. अदरवाइज पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा. तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2
into cos 2 स्क्वायर थीटा थीटा। है। तो ये मेरा हो गया सिग्मा एन डैश का फॉर्मूला, इक्वेशन बी। अब तीसरा मुझे फाइंड करना है शियर स्ट्रेस टाउ, शियर स्ट्रेस टाउ ऑन प्लेन ए डैश, मतलब ए डैश प्लेन पे, मतलब ये वाला टाउ जो बात कर रहा हूँ मैं, प्लेन ए डैश पे जो स्ट्रेस लगेगा, तो टाउ ऑन प्लेन ए डैश, तो उसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। This will be my third equation. थर्ड Tau इक्वेशन। on plane A dash. Tau on plane A dash. Sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 multiplied by sin 2 theta. हो गया इतना? यस सर। हाँ सर होगा। अब टाउ तक हमने किया, राइट, प्लेन ए डैश पे। नाउ जो टाउ वाला फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 3, शियर स्ट्रेस इन प्लेन ए डैश, it will be maximum. So tau on plane A dash will be maximum. कब मैक्सिमम होगा? when sin 2 theta, when sin 2 theta will be equal to plus or minus 1. ये कंडीशन है स्टैंडर्ड कि अगर sin 2 थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस 1 रही तो ऊपर जो टाउ की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स कितनी होनी चाहिए थीटा की वैल्यू? तो इस पे आप इजीली थीटा फाइंड कर सकते हो साइन इनवर्स करके, राइट। तो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 45 डिग्री और 135 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री। सो अगर एग्जांपल में आपको दिया गया है कि 45 डिग्री एंगल पे प्लेन है या फिर 135 डिग्री एंगल पे प्लेन है, सो इन दैट केस आपका जो टाउ रहेगा प्लेन ए डैश पे वो मैक्सिमम रहेगा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। सो therefore टाउ मैक्सिमम की फॉर्मूला हो जाएगी, टाउ मैक्सिमम will be equal to sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 with negative sign outside, with negative sign outside। अगर आपको ये वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, अगर ये आपको पॉजिटिव में चाहिए तो आपको उससे तीसरी तरह से भी लिख सकते हैं, और मोड टाउ मैक्स, राइट, मोड में रख देंगे तो वैल्यूज का कोई मैटर नहीं करता। सो इट विल बी पॉजिटिव सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2। ये मेरा एक और इक्वेशन बन गया, इक्वेशन डी। अब लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर आप साइन 45 रख रहे हो, थीटा 45 रख रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो साइन 90 डिग्री रहेगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 आएगी। 1। यस और नो? यस यस। वैसे ही यस सर। 135, हाँ वैसे ही आप अगर साइन 135 रखते हो तो उसकी वैल्यू -1 रहेगी, हाँ। राइट। तो उसी वो वैल्यूज रख के हमने यहाँ पे साइन वाला कॉन्सेप्ट निकल गया, राइट। और अल्टीमेटली हमारा टाउ मैक्सिमम वाला फॉर्मूला बना मोड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? सो देयरफॉर टाउ मैक्सिमम विल अकर ऑन अ प्लेन which is inclined at 45 degree to the principal plane। तो ये सब करके हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि टाउ मैक्स will occur on a plane inclined at 45 degree to principal plane, राइट। तो आपके एग्जाम में एज ए एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है,
जैसे कि टाउ मैक्स अकर ऑन अ प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एंगल ब्लैंक टू द प्रिंसिपल प्लेन। तो आपका आंसर रहेगा 45 डिग्री या फिर 45। हाँ सर। 135। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। इसमें हमने 4 फॉर्मूला की। सबसे पहले सिग्मा एन, उसका फॉर्मूला था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा। सेकंड फॉर्मूला थी सिग्मा एन डैश, सिग्मा एन जैसी सेम फॉर्मूला, सिर्फ साइन चेंज किया, बीच में प्लस की जगह पे हाँ माइनस। माइनस रख दिया। थर्ड हाँ फॉर्मूला फिर रहा मेरा टाउ वाली। टाउ वाली फॉर्मूला में आई थिंक आई मिस्ड वन। आपने टाउ की क्या फॉर्मूला लिखी है मुझे बताओ तो। टाउ ऑन ए डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अंडर 2 और साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। उसमें ये मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट साइन 2 थीटा। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रख दो क्योंकि मैं भूल गया नेगेटिव साइन रखना। नेगेटिव। ओके नेगेटिव इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन 2 ओके। थीटा। अब आगे ठीक नेगेटिव है। साइन में भूल गया था, राइट। हाँ हाँ ओके सर। ओके, और चौथा फॉर्मूला ये टाउ मैक्स जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि दो एंगल है, हाँ अगर 45 डिग्री है और 135 है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा टाउ मैक्स का। ओके सर। ऑलराइट, अब इसमें एक स्पेशल केस है, राइट। तो वो स्पेशल केस समझते हैं, वो वेरी रेयरली आएगा, बट अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जामिनर को बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर निकालना है, या फिर इंटरव्यू ऐसा है कि जिसको बहुत टफ क्वेश्चन पूछने हैं जो बहुत कम लोगों को आए, तो वो लोग ये वाले क्वेश्चन उठाते हैं, स्पेशल केस, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड स्पेशल केस। केस नंबर 2 की बात हो रही है और इसमें हम स्पेशल केस समझते हैं। सो स्पेशल केस में क्या है, shear stresses will be maximum at 45 degree or 135 degree to the major principal plane at plane of tau max। अब हमें पता चल गया कि एंगल दिया है 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री एंगल है, सो 45 डिग्री पे हमें टाउ मैक्स मिलेगा, राइट, मैक्सिमम shear स्ट्रेस। अब जब मैक्सिमम shear स्ट्रेस रहेगा तब नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, राइट। ये वाला स्पेशल केस है। अगर टाउ मैक्स की वैल्यू है तो सिग्मा एन की वैल्यू क्या रहेगी, राइट। तो सिमिलरली फिर से एक स्ट्रेस ब्लॉक बनाते हैं हम और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे ये वाला है, राइट, ये मेरा सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2 एंड देयर इज अ प्लेन एंड द एंगल इज थीटा, राइट। वो प्लेन नीचे जाता है और यहाँ पे हम छोटा सा स्ट्रेस ब्लॉक एक और बनाते हैं। दिस विल बी माय सिग्मा एन। अब यहाँ पे टाउ मैक्स है, हमें पता है कि टाउ मैक्स है, ये वैल्यू टाउ मैक्स है, right, we know this is tau max, then there is a sigma n dash here, this is again sigma n and this is sigma n dash. So what happened to this formula if we know the angle is theta? The angle ये 45 डिग्री है, हमें पता है, right? तो in that case फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एन और सिग्मा एन डैश का, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एन डैश, दोनों का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये चीज आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप पिछले वाले फॉर्मूला देखो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 इनटू cos 2 थीटा। जो पिछले केस में पिछले वाले में मतलब एंगल नहीं पता है तब जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हो तो cos 2 थीटा मतलब 90 वो जीरो हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला यही बचेगा। तो सिग्मा एन और सिग्मा एन डैश की फॉर्मूला मिलेगी आपको अगर आपको पता है टाउ मैक्स और थीटा पता है 45 डिग्री, 45 डिग्री या फिर दूसरा एक वैल्यू है 135, वो भी आपको याद रखना है, 45 होना चाहिए या फिर 135 होना चाहिए, 45 और 135। तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मेरा फॉर्मूला ऐसा हुआ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज माइक म्यूट कर दें। What it means? It means that normal stresses on the plane, normal stresses
on plane of tau max, on plane of tau max are equal and alike, are equal and alike, सेम होते हैं और alike मतलब सेम डायरेक्शन में रहते हैं, वैल्यू भी सेम रहती है और सेम डायरेक्शन में रहते हैं, आर इक्वल एंड अलाइक। ये फॉर्मूला जो ऊपर हमने लिखी सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एन डैश इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू, उसका मीनिंग हुआ कि नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है जो मेरे टाउ मैक्स वाले प्लेन पे लग रहे हैं दोज आर इक्वल एंड अलाइक, देयरफॉर रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन टाउ मैक्स प्लेन इज, उसका रिजल्टेंट स्ट्रेस हम फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर resultant stress that is sigma r on plane tau max हमें डायरेक्टली मिलेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स स्क्वायर, राइट, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स स्क्वायर। अब सिग्मा एन की फॉर्मूला क्या होगी इस केस में, सिग्मा एन हो जाएगा मेरा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स की फॉर्मूला भी हमें पता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होल स्क्वायर और उसका पूरा स्क्वायर रूट, तो सिग्मा एन और टाउ मैक्स की वैल्यू रखी हमने, राइट। हाँ सर। अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत भी आता है तो इसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं कि सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर होल डिवाइड बाय टू, ये वाला जो इक्वेशन हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला बनेगा सिग्मा आर का स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर डिवाइड बाय टू। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है सिग्मा आर का, जब आपको टाउ मैक्स पता है 45 डिग्री दिया है, इन दैट केस रिजल्टेंट सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर डिवाइड बाय टू। तो ये एक और इक्वेशन हो गया मेरा स्पेशल केस में, ओके हो गया इतना कॉपी। हाँ सर। ओके सर। और एक और फॉर्मूला है स्पेशल केस में लास्ट, वो समझने से पहले एक डायग्राम समझते हैं। जैसे हमारा ये प्लेन है, राइट, प्लेन है, प्लेन का नाम है ए डैश, ए डैश इज द नेम ऑफ द प्लेन, और ये प्लेन पे हमारा सिग्मा एन ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और रिजल्टेंट फोर्स, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, दिस इज सिग्मा आर, और टाउ मैक्स की वैल्यू भी है, राइट, टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज टाउ मैक्स। अब ये दो सिग्मा आर और सिग्मा एन, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक अलग एंगल होगा, दैट विल बी एंगल बीटा। रिजल्टेंट फोर्स दैट इज रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में एंगल बनेगा, उसका एंगल रहेगा बीटा। तो अगर उसको हमें फाइंड करना है, और वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। मैं लिख देता हूं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, OBLIQUITY, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो अगर वो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, तो वो हमें मिलेगा tan बीटा इज इक्वल टू टाउ मैक्स डिवाइड बाय सिग्मा एन। tan बीटा इज इक्वल टू टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। तो हमें वैल्यू पता है टाउ मैक्स की, हमें वैल्यू पता है सिग्मा एन की,
हम दोनों वैल्यूज रखेंगे तो अल्टीमेटली उसकी फॉर्मूला बनेगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। टेन बीटा एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी की फॉर्मूला हुई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, सॉरी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, राइट, नॉट डिवाइड बाय 2। तो ये मेरा फॉर्मूला बना एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी का। डन। हाँ सर। ओके, राइट। अब इससे एक बहुत ही ऊपर वाला लेवल पे जाता है। जो बच्चे यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर आईईएस और वर्ल्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट स्पेशल केस है, ये स्पेशल का भी स्पेशल केस हो गया। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सो लेट अस गो देयर। हम जाए वहां पे या यहीं पे छोड़ दें? सर रेलवे में ये टॉपिक आ सकता है? ऑफ कोर्स, हाँ तो फिर जाएंगे सर। कहीं पे भी आ सकता है, कोई से भी एग्जाम में आ सकता है, बट बहुत इग्नोर्ड है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होगा। तो चलो, ये केस में क्या होगा कि अभी तक जो हमने देखा उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें दिए होते हैं। अब अगर कहीं ऐसा हुआ कि ओके। चलो केस नहीं दिए हैं, सो इफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नॉट नोन, मैं लिख देता हूँ एक और स्पेशल केस। इफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नॉट नोन, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं पता है बट प्रिंसिपल स्ट्रेस आर नोन, बट प्रिंसिपल स्ट्रेन, राइट, प्रिंसिपल स्ट्रेन, STRA स्ट्रेन आर नोन। अगर ये वाला केस है, एग्जांपल में कभी ऐसा होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं दिए बट प्रिंसिपल स्ट्रेन दिए हैं एट एनी प्लेन, तब आपको बोला गया है कि आप फाइंड करो प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस। वो आपका अननोन है। सो उसके लिए जो फॉर्मूला है सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2। ये हुआ सिग्मा 1 का फॉर्मूला। सिमिलरली सिग्मा 2 का फॉर्मूला होगा E डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर, E डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर और एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 1, where एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 ये क्या है? मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। एप्सिलॉन 1 होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, एप्सिलॉन 2 होगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो ये होगा स्ट्रेस की वैल्यू। अब हमें टाउ मैक्स फाइंड करना है, टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स की फॉर्मूला रहेगी मोड में टाउ मैक्स इज इक्वल टू maximum of sigma 1 minus sigma 2 divide by 2, sigma 1 minus sigma 2 divide by 2. Second is sigma 2 minus sigma 3 divide by 2, sigma 2 minus sigma 3 divide by 2. और तीसरा है sigma 3 minus sigma 1 divide by 2, sigma 3 minus sigma 1 divide by 2। ये तीन में से जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी दैट विल बी माय टाउ मैक्स। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या है? तो सिग्मा 1 है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस,
मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड सिग्मा 3 जो आपके लिए नया है, पहली बार आया, सिग्मा 3 क्या है? सिग्मा 3 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट। तो ये स्पेशल का भी स्पेशल केस हुआ कि अगर आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यूज नहीं है बट प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू दी है, तो कैसे फाइंड करना है? तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। हार्दिक सर, ये मेजर और माइनर तो पता चल गया, लेकिन एक इंटरमीडिएट वाला क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, इंटरमीडिएट मतलब अगर आप ज्यादा क्लियर होगा जब हम एग्जांपल करेंगे, राइट। तो ये मैं ओके ओके एग्जांपल में समझाने का ट्राई करूंगा। अभी ओके के लिए ओके सर। फॉर्मूला याद रख लो। हाँ हाँ। हो गया? हाँ सर, हो गया। यस सर। राइट। तो ये हो गया मेरा सेकंड केस। केस नंबर 2 एंड्स हियर। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो हमने डिक्टेट कर ली। अब इसके यूज करके एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, राइट। दिस विल बी माय मेथड कि पहले थोड़ा डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला से, उसके बाद एग्जांपल भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ताकि फॉर्मूला हम एक्चुअली अप्लाई करके सीख सकें, राइट। ये हार्दिक सर, तो ये स्पेशल केस में सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, 1 और 2? स्पेशल केस मतलब ये स्पेशल जो का अभी स्पेशल आपने, या? हाँ। हाँ, उसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 की फॉर्मूला है और टाउ मैक्स की फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला ओके, है। ये 3, ओके, हाँ। तीन बार। हाँ सर। ओके। तो छोटा सा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 फॉर टुडे, केस नंबर 2 के लिए, राइट। तो उसमें क्या दिया है? द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस at a point inside a loaded body are inside a loaded body are प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिए गए हैं 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। पहला है 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फाइंड नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, फाइंड नॉर्मल tangential and resultant across plane passing through, across the plane passing through 60° to the plane passing through 60° to the plane of 100 Newton per mm square stress, राइट। ये डेटा दिया है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आपको फाइंड करना है नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस। प्लेन दिया है 60°। कौन से प्लेन पे? 100 वाले प्लेन पे। तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ फिगर फॉर दिस। तो इसका फिगर बनेगा कुछ ऐसे, सॉल्यूशन। तो ये वाला मेरा स्ट्रेस प्लेन होगा, जो मैक्सिमम है। मोस्टली मैं हॉरिजॉन्टली लिखने का ट्राई करूंगा। ये होगा सिग्मा 1, सिग्मा 1 होगा 100। दूसरा है माइनर मतलब सिग्मा 2, सिग्मा 2 दिया है 75। That's on this side also, sorry, this way this will be 100 Newton per mm square
and in this way it will be 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से स्ट्रेस अरेंजमेंट दिया है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो प्लेन हमें लेना है, प्लेन है वो 100 वाले प्लेन से 60 डिग्री के एंगल पे है, राइट। सो इट इज लाइक दिस। So for this case, we need to find out normal, tangential and resultant. So first हम फाइंड करेंगे सिग्मा n। तो सिग्मा n फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू cos 2 थीटा। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा 2 की वैल्यू हमें पता है। सिग्मा 1 इज 100, सिग्मा 2 इज 75 और थीटा की वैल्यू भी पता है 60 डिग्री। So please put these values and find out the value of sigma n. चलो क्या आ रही है सिग्मा n की वैल्यू? 81.25। ओके यस 81.25 न्यूटन पर न्यूटन mm पर mm स्क्वायर। 81.25 सर, 81 स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm स्क्वायर। ओके नेक्स्ट फाइंड करो शियर टेंजेंशियल शियर की वैल्यू टाउ। टाउ की वैल्यू क्या आ रही है? 10.82 यस 10.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और रिजल्ट है सिग्मा r r इज इक्वल टू 81.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट। सो ऐसे करके आप तीनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि एग्जांपल सॉल्व करना है तो फॉर्मूला याद रखना ही है, हाँ सर। राइट। तो फॉर्मूला अगर इम्पोर्टेंट और फॉर्मूला के साथ साथ कौन सा केस है वो आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप गलत फॉर्मूला यूज कर लोगे, राइट। सो फॉर्मूला प्लस केस वी नीड टू आइडेंटिफाई।
दिस इज वन स्मॉल एग्जांपल। इसके बाद एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करने का ट्राई करेंगे, टाउ मैक्स। टाउ ओके, लेट अस डू एग्जांपल नंबर 3। तो उसमें क्या दिया है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ डायमेंशन, रेक्टेंगुलर प्लेट, उसका डायमेंशन दिया है 150 बाय 100 बाय 10 mm, 150 बाय 100 बाय 10 mm. It is subjected to axial loads, subjected to axial loads as shown in figure. So figure में ऐसा दिया है, so this is a plate, this type of plate is given. So axial load of is 30 kilonewton, vertical is 30 kilonewton, and horizontally it is 25 kilonewton. तो 30 ऊपर की साइड पे, 30 नीचे की फेस पे सिमिलर लगेगा, so this will be 30 again. Similarly horizontally also, on the left hand side also I will have 25 kilonewton. Dimensions are 150 by 100 by 10. So horizontal वाला होगा 150, then this one will be 100, and thickness is 10 mm. Right, so this type of force arrangement is given. It is subjected to axial loads as shown in figure. क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट maximum shear stress induced in the loaded plate. Calculate tau max, tau max find करने को बोला है, right? So using the data we are supposed to find out the tau max. Now let us start the solution for this. तो अगर आप देखोगे डेटा में आपको दिया है एक्चुअल लोड्स, सबसे पहले आपको लोड्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू कन्वर्ट द लोड्स इनटू द स्ट्रेस। किलो न्यूटन है ये जो हार्दिक सर किलो न्यूटन में दिया है, उसको न्यूटन में करना पड़ेगा ना सबसे पहले, न्यूटन पर एम एम। हाँ हाँ करना पड़ेगा, राइट? ओ तो स्ट्रेस का फॉर्मूला रहेगा P बाय A, राइट? तो कोई भी एक डायरेक्शन वाला स्ट्रेस ले लो, हॉरिजॉन्टल हम x गिनेंगे, वर्टिकल हम y गिनेंगे, तो सिग्मा x वाला लेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स लेंगे। तो डेटा में हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है 25, तो 25 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, सो डायरेक्टली 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया। इसमें एरिया क्या होगा, सो एरिया जो है वो 25 किलो न्यूटन फोर्स ये वाले प्लेन पे लग रहा है जो मैंने शेडेड किया है, राइट? तो उसमें एरिया कैसे मिलेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, समझ में आया? यस सर। हार्दिक सर ये पता नहीं चला, एक बार फिर से समझाओ ना। P समझ में आ गया, 25 हाँ, पी पता चल गया सर। तो P बाय A, तब ये P जो फोर्स है वो कितने एरिया पे लग रहा है, तो एरिया हमें ये जो शेडेड पोर्शन मैंने फिगर में दिखाया है, ये वाला शेडेड पोर्शन, इतने रेक्टेंगल का एरिया हमें ओके फाइंड सर, करना हाँ है। 100, हाँ हाँ ओके सर, ओके पता चल गया। तो इससे आपको सिग्मा x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आ रही है, सिग्मा x आएगा 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, बिकॉज ये 10⁻³ और ये भी 10⁻³ होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली सिग्मा x इज 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिमिलरली हमें सिग्मा y भी फाइंड करना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, सो सेम P बाय A, वर्टिकल में P की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻³ क्योंकि न्यूटन में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय एरिया। अब एरिया हमें ये वाला ऊपर वाला एरिया लेना है, उसमें 150 बाय 100 होगा, राइट? एरिया क्या होगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 100, समझ में आया?
हाँ सर। ओके गुड। राइट, सो इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे कितनी मिलती है? क्या रहा आंसर? सिग्मा वाई 2 यस 2 न्यूटन पर न्यूटन mm। पर एमएम स्क्वायर, हाँ। राइट, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों मिल गया। मतलब ये दोनों में से मेरा सिग्मा वन कौन सा होगा और सिग्मा टू कौन सा होगा? सिग्मा वन क्या सिग्मा है? x इज इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल है, 25 हाँ वो 25 वाला सिग्मा वन सर। 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यस, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बजाय आप ऐसा बोल सकते हो सिग्मा वन जो है मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। मेजर, हाँ। हाँ मेजर। मतलब जो मैक्सिमम हुआ वो, राइट। हाँ सिग्मा हाँ। वन इक्वल टू सिग्मा एक्स और सिग्मा टू दिस इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा वाई। सिग्मा y। ओके वाई। तो अब इसके ऊपर से अगर हमें डायरेक्टली टाउ मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि टाउ मैक्स फाइंड करने के लिए मुझे सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू चाहिए, राइट। तो टाउ मैक्स कैसे मिलेगा? टाउ मैक्स इज इक्वल टू, मोड में लिखेंगे क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाय टू। तो सिग्मा वन की वैल्यू आपने फाइंड की, वो है 25। सिग्मा टू है 2 डिवाइड बाय 2। तो टाउ मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 11.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 11.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। सर, यस, आपने जो फॉर्मूला लिखवाई है, जो सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एन डैश और बार दूसरी माइनस का सिग्मा साइन। आर, हाँ। वो दोनों कब यूज करनी है? कौन सी फॉर्मूला बोल रहे हो आप? ये जो आपने लिखवाया है ना, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एन डैश वाली, स्पेशल केस वाली। स्पेशल केस वाली वो होगा जब आपको एंगल दिया गया है 45 डिग्री, तब होगा। ओके, जब एंगल दिया ओके। होगा तब ये सारी फॉर्मूला यूज करनी है, और एंगल नहीं दिया होगा तो ओनली सिर्फ नहीं 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 नहीं, टाउ मैक्स एंगल वाला। इसमें भी दिया है, एंगल इसमें भी दिया है। आप पिछला वाला एग्जांपल देखो, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री हाँ। सर। अब दूसरा वाला एग्जांपल है उसमें एंगल नहीं दिया है, तो एंगल नहीं दिया है तो हमें नॉर्मल वाली फॉर्मूला है वही यूज करनी है। वो जो स्पेशल केस वाली फॉर्मूला है वो सिर्फ एंगल अगर दिया है और वो सिर्फ 45 और 135 तभी यूज करना है। तब ओके। दूसरे ओके सारे सर, हाँ। एंगल पे, दूसरे सारे एंगल्स पे हमें यही वाली फॉर्मूला यूज करनी है। सिंपल केस 2 वाली। यस, ठीक है। राइट। तो उससे हमें एक और चीज पता चलती है, अगर आपको एग्जांपल में पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, राइट, अगर आपको पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी दैट इज बीटा, और अगर एग्जांपल में थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, तो मुझे बताओ क्या वो फाइंड हो पाएगा? नहीं सर, क्योंकि थीटा तो हाँ 45 से 130, 40। 45 और 135 होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, तो ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसा ओके सर। क्वेश्चन मैं पूछूंगा 7 मार्क में, इसका आंसर सिर्फ इतना है कि एंगल is not 45 135, so we cannot find angle of obliquity। ओके सर। आंसर लिखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ। सर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है? आ सकता है इस बार। ओके सर। Right, so this is how we solve the example। so ये मेरा हो गया केस नंबर 2 और उसके दो छोटे से एग्जांपल हमने टेस्ट करके देख लिए फॉर्मूला अप्लाई करके। अब नेक्स्ट आएगा केस नंबर 3।
एक बार टाइम देख लेते हैं कितने बजे है, अराउंड 2:50. ओके, so instead of going back to the case number 3, we'll do one more small example. राइट, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तब फॉर्मूला अप्लाई करने की, ताकि फॉर्मूला भी याद हो जाए. राइट, तो अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा. राइट, नाउ आई विल नॉट सॉल्व, आई जस्ट गिव यू द डेटा and you are supposed to solve it and tell me the answers. ओके सर. Okay, right, so let us have example number 4 for today. आपको क्या दिया गया है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख देता हूँ. सिग्मा 1 है 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर. सिग्मा 2 इज 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर. देन एंगल आपको दिया गया है, एंगल लेट अस से 30 डिग्री. आपको फाइंड करना है सिग्मा n, then tau max and sigma r. These three things you are supposed to find. So quickly find these three things and tell me the answers for sigma n, sigma r and tau max. सबसे पहले कौन सा केस होगा ये, 1 या 2? कौन सा केस होगा? केस 1 1 होगा सर. और उसके बाद सिर्फ 1 वो होगा. लिखवाना. केस 1 में तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगना चाहिए. हाँ किलोमीटर. देखो केस 1 में तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, सिग्मा हाँ एक्स हाँ वाली. हाँ. हाँ सर. हाँ हाँ. केस 2. 2 होगा सर, 2 डायरेक्शन में लग रहा है. राइट, देखा हमने अभी 5 मिनट पहले ही सॉल्व किया और आप याद नहीं रख पाए. हाँ तो सोचो आप 6 महीने तक कैसे याद रखोगे. राइट, सो इसका सॉल्यूशन है, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा. हाँ. हाँ ओके सर. तो केस 2 वाली फॉर्मूलाज अप्लाई करो. सर सिग्मा एन इज 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ओके, जस्ट लेट मी राइट. सिग्मा एन आता है आपका 100. दोनों का आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं है. हाँ सर 100 ही आ रहा है सिग्मा एन. ओके, अब नेक्स्ट हाँ, वाला 100 सिग्मा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. टाउ मैक्स फाइंड करो. हाँ सर ठीक.
टाउ मैक्स 25. Okay, tau max is 25. Sigma R. हाँ सर, टाउ मैक्स 25 आ रहा है. Yes, good. Sigma R is equal to 103.07 Newton per mm square. Is 103.07 Newton per mm square. Great. राइट, तो इसमें एंगल दिया था 30 डिग्री. अब सपोज करो एग्जांपल एक और कर लेते हैं 45 डिग्री एंगल के साथ. सेम डेटा है, ऊपर वाला डेटा सेम, उसमें सिर्फ थीटा चेंज करना है 45 डिग्री. तो 45 डिग्री एंगल करने के बाद सिग्मा एन और सिग्मा एन डैश फाइंड करो. दोनों सेम ही रहेगा वैसे. सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एन डैश. फिर फाइंड करना रहेगा सिग्मा आर रिजल्टेंट. और नेक्स्ट फाइंड आउट एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बीटा. Sir, sigma n is equal to 175 Newton per mm square. Okay, sigma n 175. Sigma R is equal to 176.77 Sigma R is 176.77. Newton per mm square. And And beta tangent beta is equal to 0.14 degree. 0.14 डिग्री. tan बीटा की वैल्यू है या बीटा की है? टेंजेंट हाँ, एक मिनट, बीटा ये सर मेरा थोड़ा टेंजेंट अलग आ बीटा रहा है. की है. tan बीटा की वैल्यू क्या आ रही है बताओ. हाँ हाँ, एक मिनट. tan बीटा 7.96. डिवाइड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. तो इसकी वैल्यू आ रही है 96 7.96. बीटा की. आपको बीटा फाइंड करना है. बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7.96. सो इनवर्स आपका साइंटिफिक कैलसी में ही कर पाओगे. हाँ सर, ये बीटा की सर वैल्यू थोड़ी अलग आ रही है, शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया मुझसे. 7.96 तो आ रहा है ना tan बीटा. सर एक मिनट, कैलकुलेट, हाँ ओके ओके ओके, सर ओनली फर्स्ट बीटा टाइम कैलकुलेशन में मिस्टेक 7.96 है. था. हाँ
तो ये वाला क्या आ रहा है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, वो आ रहा है 0.14। ओके 0.14, ओके तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0.14, 0.14, ओके तो tan इनवर्स 0.14, उसकी वैल्यू आ रही है mm स्क्वायर। हाँ ओके, तो आपका एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी आया 7.96 96। डिग्री। ओके सर। राइट, सो हमने ऑलमोस्ट सारे केसेस अप्लाई करके देख लिए। एंगल 45 हो तो क्या करना है, कोई और एंगल हो तो क्या करना है, राइट। सो दिस इज सर ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसके अलावा कोई और एग्जांपल नहीं आएगा ना, सिर्फ ऐसे एग्जांपल आएंगे ना? केसेस के हिसाब से आएगा कि आगे और 2 केसेस बाकी है अभी। ओके सर। राइट, सो केस 3 पे हम आज नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, तो अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना, वी हैव 10 मोर मिनट्स। ऑलराइट, तो अभी के जो हमने डिस्कशन किया आज वाले चैप्टर में, उसमें कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। राइट, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप लोग एक फॉर्मूला का अलग से लिस्ट बना के रखो, ताकि फाइनल एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर करने बैठो आपको सिर्फ फॉर्मूला इजीली अवेलेबल हो प्रिपेयर करने के लिए। ओके सर, ये जैसे सब्जेक्ट में ज्यादातर थियरी आएगी या एग्जांपल आएंगे? एग्जाम्पल एग्जांपल, ओके। और 80 थियरी to एग्जांपल कितने मार्क के होते हैं सर दोनों? 80 to 90% आपको एग्जाम्पल ही मिलेंगे। ओके सर। अगर 100 मार्क का पेपर है सपोज करो एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें से 80 या 90 मार्क्स के सिर्फ एग्जाम्पल ही होंगे, थियरी बहुत ओके कम होगी। ओके ओके सर। तो केस नंबर 3, अब आगे हम क्या करने वाले वो थोड़ा देख लेते हैं। केस नंबर 3 में क्या रहेगा, मैं जस्ट बता देता हूँ, राइट, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाए कि क्या होगा। सो इन द केस नंबर 3, if sigma x and sigma y are normal stresses and tau xy is a shear stress acting on a mutually perpendicular plane। अब इसमें टाउ एक्स वाई shear stress एक और चीज ऐड होगी। अभी तक हमने किया था सिग्मा 1 सिग्मा 2, राइट, या फिर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यही दिया था हमें। अब तीसरे केस में सिग्मा एक्स भी रहेगा, सिग्मा वाई भी रहेगा, और टाउ एक्स वाई भी रहेगा, शियर स्ट्रेस भी लगेगा। तो तीनों वैल्यू दी होगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी होगी, सिग्मा वाई की वैल्यू दी होगी, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी होगी। और वो वाले केस में आपको नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है, राइट, और शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, उसमें भी एक स्पेशल केस है, राइट। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 3। और केस नंबर 4 में क्या रहेगा, केस नंबर 4 में आएगा आपका, जस्ट मिनट, केस नंबर 4, यस, केस नंबर 4 आएगा आपका प्योर शियर। अब प्योर शियर का मतलब क्या है, सिग्मा एक्स 0 रहेगा, सिग्मा वाई भी 0 रहेगा, और सिर्फ आपको टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी होगी, शियर स्ट्रेस लगेगा सिर्फ, कोई भी एक्सियल स्ट्रेस नहीं लगेगा, सिर्फ शियर स्ट्रेस, राइट। सो ऐसे मिला के टोटल 4 केस हो जाएंगे। पहला वाला केस था सिर्फ एक ही डायरेक्शन का शियर, या तो सिग्मा एक्स या तो सिग्मा वाई। दूसरा वाला केस रहेगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों। तीसरे वाले केस में हम आगे देखेंगे सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है, और टाउ एक्स वाई भी है, राइट। तो शियर और शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। और चौथे वाले केस में सिग्मा 1 0 हो जाएगा, सिग्मा 2 0 हो जाएगा, और सिर्फ वैल्यू दी होगी टाउ एक्स वाई की, राइट। तो ऐसे मिला के टोटल 4 केसेस हम देखेंगे ये वाले चैप्टर में, राइट। ओके सर। और कभी कभी हम थोड़ा एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, राइट, अगर आप लोग रेडी होंगे तो। हाँ हाँ सर, श्योर श्योर। हाँ सर, sure। ओके, सो आपको सिलेबस और वो सब आपके गूगल क्लासरूम पे से मिल जाएगा, राइट। मैंने डाला हुआ है सिलेबस और टाइम टेबल। ओके सर। टीचिंग स्कीम भी मैंने डाली हुई है, कौन से सब्जेक्ट है, कितना क्रेडिट है हर एक सब्जेक्ट का, वो सब भी दिया है। उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर पाओगे कि किसमें ज्यादा मेहनत करके ज्यादा क्रेडिट अर्न कर सकते हो आप, और कौन सा सब्जेक्ट कम क्रेडिट वाला है। ओके हाँ।
ओके, तो ये वाला जो सब्जेक्ट हम अभी पढ़ रहे हैं वो टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई वाला पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है कि आप पढ़ोगे और आपको याद रह जाएगा। दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा बार आप फॉर्मूला यूज करोगे, इट विल बी इजी फॉर यू इन द एग्जाम्स। ओके ओके सर। आपने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा अप्लाइड मैकेनिक्स, जो बहुत हाँ हाँ होता है। हाँ सर, AM। बच्चों को बहुत डर लगता है ये सब्जेक्ट से, तो ये उसका आगे का वर्जन है, उसका बाप है ये। अच्छा। ओके सर, AM फिर उसके बाद SM1 SM2 सब साथ में ही अलग अलग करके आता है। हाँ हाँ, राइट। बट आप डिप्लोमा करके आए हो तो आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूलास ऐसे होंगे, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो फेमिलियर होंगे, आप एक बार पढ़ चुके होंगे, जैसे ये वाला टॉपिक हम अभी हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ 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 सर। हाँ, सिर्फ रिवाइज ही करना बाकी रहता है सर। हाँ हाँ। ऑलराइट। ठीक है सर। ओके, सो टोटल 3 स्टूडेंट है। आपको ईमेल आईडी मिल चुके हैं राइट, यूनिवर्सिटी का? हाँ हाँ, मिल गए सर। हाँ सर, मिल गए। ओके, और गूगल क्लासरूम में आई थिंक एक ही बच्चे ने अभी तक मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। ओके सर, अभी हम देख लेते हैं ब्रेक में। देव। देव, ओके देव। हाँ। तो एक मेल आया होगा यूनिवर्सिटी का जिसमें आपको इनविटेशन होगा कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो। अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताना, मैं फिर से इनवाइट कर दूंगा। ओके सर, देख लेते हैं, ठीक फिर है जो सर। होगा आपको वो मैसेज कर देंगे सर पर्सनल में। सर कौन से मेल पर आएगा, ये वाले ईमेल आईडी के मेल पे आएगा? हाँ, ये वाला यूनिवर्सिटी ने जो आपने दिया है टेम्पररी आईडी, उस पे ही आएगा। हाँ हाँ, ओके ठीक है सर। सर। बट जिसने एक्सेप्ट कर दिया है उसको फिर से नहीं आएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी इनविटेशन आ गया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, वो क्लासरूम में आ गया है। ओके सर, ओके देख सर, लेते हैं। हाँ। देख लेते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग रहेगा वो भी मैं गूगल क्लासरूम में ही रखूंगा। ओके सर। और एक चीज, आपका अटेंडेंस के लिए हम क्या करेंगे आज, एक मिनट। हाँ, अ, अगर आप गूगल क्लासरूम में हो, ओके, पहले मुझे बता दो कौन है। आई थिंक अथर्व, अथर्व ऑलरेडी इज देयर, राइट। दूसरा है, दूसरा कौन है? देव। देव, आपका मेल आईडी पता है आपको, टेम्पररी वाला? टेम्पररी वाला सर, मैं बैक में जाके आपको व्हाट्सएप से बता दूं? बैक में जाके तू बोल के बता दे, मैं यहाँ पे टाइप करके तुझे अभी इनविटेशन भेज देता हूँ। ओके सर। तो क्या आपको आज गूगल क्लासरूम में जाना है और एक क्विज अटेम्प्ट करना है जिससे आपकी अटेंडेंस गिनी जाएगी। ओके सर, ओके। ओके सर। ये जो सर अंकिता मैम ने भेजा है, T01D20CV053@paruluniversity.ac.in। धीरे धीरे धीरे। हाँ, T01 D20 जीरो CV CV 053 053 @Parul University @paruluniversity.ac.in, डॉट राइट? एसी डॉट इन। यस सर। ओके, तो अभी जस्ट चेक करना, मैंने एक इनविटेशन भेजा है ओके सर। मेल आईडी पे। हाँ हाँ, ओके सर, ओके। आया? वेट सर, वेट अ सेकंड प्लीज। रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ सर, आ गया। राइट, तो हाँ वो हाँ। गूगल क्लासरूम में जमीन में जाओ, और उसमें जब ये ज्वाइन होगे तो उसमें क्लास वर्क वाला टैब आएगा, क्लास वर्क। उसमें मैंने क्विज डाला हुआ है। ओके सर। हाँ सर है। वो क्विज अटेम्प्ट कर लो। दोनों को दिख रहा है? एक मिनट सर। एनरोलमेंट नंबर भी अभी आपके पास नंबर नहीं होगा तो मैं अभी बता देता हूँ कि
अथर्व तुम 1 लिखना, एनवायरमेंट नंबर 1, हाँ और देव एनवायरमेंट नंबर 2 लिखना। ओके सर। अभी मैंने जनरल क्वेश्चन डाले उसमें कंक्रीट डिजाइन के। आज के बाद जो भी क्विज होगा उसमें आपके टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन दिए आपको। ओके। और उसके ऊपर से अटेंडेंस होगी सर। हाँ, ओके। और ये क्विज की वैल्यू है क्योंकि इसमें ये जो पूरे सेमेस्टर में जितने भी क्विज लिए जाएंगे उसके मार्क्स एवरेज होके एंड में जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वाला जो पोर्शन है 20 मार्क्स वाला, हाँ। उसमें इसके मार्क्स कंसिडर होंगे। ओके सर। हो रहा है क्विज? हाँ सर हो गया। ओके, ओके, अथर्व ने कर दिया, देव देव अभी कर रहा है। हाँ सर।